Hello and welcome to part 2 of the analysis of 2020 PHU MA English Entrance Exam। 30 क्वेश्चंस तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज इट से? इट आस्क्ड इफ दे बी टू दे आर टू as swift twin compasses are two। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? द अबव टू लाइंस अपीयर्स इन इफ दे बी टू दे आर टू as swift twin compasses are two। ये लाइंस ली गई हैं अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस और मेटाफिजिकल कंसीट पोएट्री है, इन विच ही आर्ग्यूज फॉर द लवर्स क्लोजनेस बाय कंपेयरिंग देयर टू सोल्स टू द फीट ऑफ ड्रॉइंग कंपासेस। तो लवर्स को कंपास से कंपेयर किया जाता है, जो हमेशा एक दूसरे के साथ किसी ना किसी रूप में जुड़े ही रहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस से है। शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अच्छा प्ले। इस आंसर की डिटेल जानने के लिए आपको ये ड्रामा पूरा पढ़ना है और पढ़ना चाहिए भी। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये आंसर बता देती हूँ। हु चूसेड मी मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही हैड, विच कैस्केट प्रोक्लेम्स दिस? द करेक्ट आंसर इज लेड कैस्केट। और मर्चेंट ऑफ वेनिस 16th सेंचुरी का एक बहुत ही अच्छा प्ले है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, एंड दिस इज बेस्ड अपॉन अ मर्चेंट इन वेनिस नेम्ड एंटोनियो who defaults on a large loan provided by Jewish moneylender Shylock। और ये पूरी डिटेल जानने के लिए आप इस प्ले को जरूर पढ़िएगा इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose monument offends Edison in meditations at Westminster Abbey? The correct answer is Sir Claudely Chauvel। ये जो ऐसे है मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबे, जोसेफ एडिसन ने लिखा था, एंड इट टॉक्स अबाउट हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, जो कि बहुत ही सीरियस तरीके का है। एडिसन विजिट करते हैं वेस्टमिंस्टर एबे को और अपने आप को अम्यूज करते हैं उन टूम स्टोन्स को देखकर, उन इंस्क्रिप्शंस को देखकर जो कि डेड लोगों के टूम्स पर लिखी गई हैं। Whenever he is in serious mood, he goes there and he notices that only the dates of birth and death are recorded without anything about the achievement of some men, and monument of Sir Claudely Chauvel's offenses the author। Next question, the first independent volume of Tennyson's poem that appeared in 1830 was which of the following? The correct answer is option number 1। The first volume of the book consists of the poems taken from his 1830 poems chiefly lyrical collection of a poem by Alfred Lord Tennyson। It was published in 1830 as it states in question itself। Next question, which of the following essayists wrote the novel The Man Who Was Thursday? The Man Who Was Thursday, A Nightmare, that is the subtitle, ये भी आप याद रखिएगा, is a novel by G.K. Chesterton, first published in 1908। तो G.K. Chesterton की है और 1908 में पब्लिश हुई है। ये एडिशनल फैक्ट भी आप याद रखिएगा। एंड द बुक इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ मेटाफिजिकल थ्रिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the names of the two children in Charles Lamb's essay Dream Children, a Reverie? The essay is about a dream. In this essay, all characters are real except the children Alice and John। So option number 2 becomes the right answer। The essay is one of the essays of Elia। essays of Elia के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, लास्ट 2019 के एनालिसिस में, कि इफ एनीबडी वांट्स द वीडियो इन डिटेल दे कैन मेंशन इन कमेंट्स। तो अभी भी आप कमेंट्स में मेंशन करके essays of Elia के डिटेल वीडियोस ले सकते हैं। द essay expresses the feelings of loss and regret faced by the narrator, and it is based on the description of a place, the relationships and the feelings that have been part of the narrator's past। Next question, the metrical foot opposite to spondy is which of the following? The correct answer is option number 1, pyrrhic। The opposite of spondy is a pyrrhic, a metrical foot consisting of two unstressed syllables। अगर आप stressed unstressed syllables के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, you can mention in comments, I'll provide you the videos in detail। Next question, to which language group does English belong? The correct answer is Germanic। The English language is an Indo-European language in the West Germanic language group, and English has its roots in Germanic language। Next question, the condition of England question was a phrase coined by which of the following?
The correct answer is option number 4, थॉमस कार्लिल. द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड क्वेश्चन एक फ्रेज था जो कि कॉइन किया गया था थॉमस कार्लिल के द्वारा, और 1839 की ये बात है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ये किया गया था. इन 1839 टू डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास, this phrase was coined by Thomas Carlyle, and this condition was shown during Industrial Revolution. Next question. In She Stoops to Conquer, who is the beloved of Mr. हेस्टिंग्स? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं. शी स्टूप्स टू कॉन्कर एक कॉमेडी है ओलिवर गोल्डस्मिथ की, विच वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1773. ये जरूर नोट कर लीजिएगा आप. और काफ़ी फेवरेट प्ले है इंग्लिश लिटरेचर में स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड की स्टडी करने के लिए. एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेज विच आर वेरी रेगुलरली परफॉर्म. जॉर्ज हेस्टिंग्स इसका एक कैरेक्टर है. हेस्टिंग्स, मिस्टर हेस्टिंग्स भी कहा जाता है. जॉर्ज हेस्टिंग जो कि एडमायर करते हैं मिस कॉन्स्टेंस नेविल को. सो ऑप्शन नंबर 3 becomes the right answer. Hastings एक educated man है who cares very deeply about Constance Neville, and he has got an intention also to flee with her to France. Next question. What according to Coleridge is the prime agent of all human perception? The correct answer is primary imagination. The primary imagination I hold to be the living power and prime agent of all human perception. This is said by S.T. Coleridge in Biographia Literaria. Biographia Literaria, or in full Biographia Literaria or Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions, एक ऑटोबायोग्राफी है इन डिस्कोर्स बाय S.T. Coleridge जो कि 1817 में पब्लिश हुई थी सबसे पहले. एंड दिस वाज इन 2 वॉल्यूम्स ऑफ 23 चैप्टर्स. तो आपको कुछ भी और क्वेश्चन भी आ सकता है इससे रिलेटेड, तो सब कुछ याद रखिए. 1817 में पब्लिश हुई थी विथ 23 चैप्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएटिक ड्रामा बाय P.B. शेले? तो सबसे पहले मैं आपको पोएटिक ड्रामा के बारे में बता दूं. पोएटिक ड्रामा इज अ काइंड ऑफ ड्रामा वेयर वर्ड्स आर स्पोकन इंस्टेड ऑफ normal sentences, or I must say dialogues. And Shelley wrote 2 lyrical dramas, Prometheus Unbound and Hellas. तो एक और लिखा था हेलास, एंड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2. प्रोमेथस अनबाउंड एक 4 एक्ट का लिरिकल ड्रामा है बाय P.B. शेले जो कि सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1820 में. एंड हेलास इज अ वर्स ड्रामा बाय P.B. शेले रिटन इन 1821 एंड पब्लिश्ड इन 1822. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विलियम गोल्डिंग. विलियम गोल्डिंग का फर्स्ट नॉवल कौन सा था? विलियम गोल्डिंग, सर विलियम गैरल्ड गोल्डिंग, जो कि एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट थे और पोएट भी थे, जिनको सबसे ज्यादा जाना जाता है उनके डेब्यू नॉवल के लिए लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो कि 1954 का नॉवल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The setting of James Synge's play Riders to the Sea is which of the following? The correct answer option number 2, Aran Island. Riders to the Sea जेम्स सिंज का एक प्ले है जो कि सबसे पहले परफॉर्म हुआ था 1904 में, 1904 में. राइडर्स टू द सी इज सेट इन एरन आइलैंड ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड एंड इज बेस्ड ऑन अ टेल सिंज हर्ड हेयर. तो सिंज ने यहाँ पर कोई कहानी सुनी थी, उसी कहानी के ऊपर ये पर्टिकुलर प्ले है और इसकी सेटिंग्स इसी आइलैंड की हैं, एरन आइलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें हमें इन मोमेंट्स के साथ एसोसिएट करना है इन पर्टिकुलर राइटर्स को. तो एक एक करके शुरुआत करते हैं. सबसे पहले इमेजिज्म से करेंगे. ये एक मोमेंट है अगेंस्ट द रोमांटिसिज्म ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, एंड इमेजिज्म ने बेसिकली एम्फेसाइज किया था सिंप्लिसिटी पर, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस पर और प्रिसिजन पर थ्रू द यूज ऑफ एग्जैक्टिंग विजुअल इमेजेस. और एजरा पाउंड इज अ नोटेड फाउंडर ऑफ इमेजिज्म. तो इमेजिज्म को हम यहाँ पर एसोसिएट कर देते हैं एजरा पाउंड के साथ. अब बढ़ते हैं हम सुरेलिज्म की तरफ. तो देखते हैं पहले ये मोमेंट क्या थी. सुरेलिज्म 20वीं सेंचुरी की एक मोमेंट है जिसमें राइटर्स के, पेंटर्स के, आर्टिस्ट्स के अनकॉन्शियस माइंड के टैलेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता था. ट्रिस्टन ज़ारा को हम इसके साथ एसोसिएट करेंगे. ट्रिस्टन ज़ारा वॉज अ रोमानियन एंड French poet, essayist and performance artist, part of Surrealism.
अब हम बढ़ते हैं वॉर पोएट्स की तरफ। वॉर पोएट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है BHU एग्जाम्स के लिए। इसको हम एसोसिएट करेंगे विल्फ्रेड ओवेन ऑप्शन नंबर 1 के साथ। Poets have been written about the experiences of war since the Greeks, but the young soldiers, poets of First World War established war poetry as a literary genre। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जो भी पोएट्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लिखा करते थे, स्पेसिफिकली वाइल क्रिटिसाइजिंग वॉर्स, दैट केम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिटरेरी जॉनरे वॉर पोएट्री। विल्फ्रेड ओवेन इसमें से बहुत ही एक फेमस पोएट हैं। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड सोल्जर एज वेल एंड वन ऑफ द लीडिंग पोएट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ड्यूल्से एट डेकोरम EST उनकी काफ़ी फेमस पोइट्री है, आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट दे दीजिए इस वीडियो में, जिससे कि मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। एंड द नेक्स्ट वन, डेडाइज्म। डेडाइज्म एक आर्टिस्टिक और लिटरेरी मोमेंट थी दैट emerged इन ज्यूरिक। 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी एंड इट वाज आल्सो इन द ऑपोजिशन ऑफ वर्ल्ड वॉर। द वर्ड डेडा ट्रांसलेट्स टू हॉबी हॉर्स एंड वाज कॉइन्ड बाय ह्यूगो बॉल। ह्यूगो बॉल ने इस वर्ड को कॉइन किया था, अ जर्मन ऑथर एंड पोएट widely considered to be the finder of this particular moment. So option number 1 basically becomes the right answer. Next question, what according to Longinus is the second source of sublime? तो sublime को मैं 2019 के एनालिसिस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अभी मैं आपको सिर्फ राइट आंसर दूंगी इसका। द करेक्ट आंसर इज इंस्पायर्ड पैशन, दैट इज कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस और पैशन। Next question, the debut novel of Ngugi wa Thiong'o is which of the following? Wa Thiong'o's first published novel was Weep Not Child. Weep Not Child जो कि पब्लिश हुई थी 1964 में। ईयर्स को याद रखिएगा। Ngugi wa Thiong'o एक केनियन राइटर थे। आप लोगों को मे बी नेशनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाए तो याद रखिएगा, केनियन राइटर थे हु वॉज कंसिडर्ड ईस्ट अफ्रीकाज वेरी लीडिंग नॉवेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the figure of speech used in the sentence, the child is the father of man. The child is the father of man. The above statement is paradoxical. Paradoxical in the sense that it contains opposite ideas for normal people. The child cannot be father. It is the man who can be father. But the poet, through the statement, the child is the father of man, wants to say that childhood is the beginning of manhood. Next question, the term pathetic fallacy was coined by which of the following? The correct answer, John Ruskin. The term was coined by John Ruskin and the phrase basically means a literary term for the attribution of human emotions, human feelings and human conduct to the things found in nature that are not human. It is a kind of personification that occurs in poetic descriptions. For example, when we say clouds seem sullen when leaves dance, or when rocks seems crying, that means we have used pathetic fallacy. Next question, how to do things with words is an influential work written by which of the following? The correct answer is option number 2, J.L. Austin. How to do things with the words 1955 का है ये टेक्स्ट, और it is perhaps Austin's most influential work. इनका पूरा नाम था जॉन लैंगशॉ ऑस्टिन, जो कि एक ब्रिटिश फिलोसोफर ऑफ लैंग्वेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many plosive consonants are there in English? The correct answer is option number 3, 6. In the most common type of stop sound जिनको प्लोसिव भी कहा जाता है, जो कि एयर को स्टॉप करते हैं, हमारी लंग्स के थ्रू जो एयर फ्लो होता है कोई भी साउंड बोलते हुए उसको स्टॉप करते हैं फ्रॉम फ्लोइंग आउट थ्रू माउथ एंड नोज एंड प्रेशर बिल्ड्स अप बिहाइंड द ब्लॉकेज एंड दीज साउंड्स आर जनरली एसोसिएटेड विद द लेटर्स। मैं आपको सभी लेटर्स लिखकर बता देती हूँ जिनके साथ एसोसिएटेड हैं। 6 लेटर्स हैं, P, T, K, B, D एंड G. Next question, who among the following is not a character in the novel Pride and Prejudice?
प्राइड एंड प्रेजुडिस ये एक ऐसा नॉवल है जो लगभग हर लिटरेचर स्टूडेंट ने पढ़ा होता है, स्पेसिफिकली जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगी। 1813 में पब्लिश हुआ था ये, और जो कैरेक्टर इसका पार्ट नहीं है आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी जान गए होंगे, दैट इज मिस केट। तो मिस केट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड 1951 की एक ऑटोबायोग्राफी है। द क्वेश्चन इज किसकी ऑटोबायोग्राफी है, एंड द करेक्ट आंसर इज स्टीफन स्पेंडर। World Within World, the autobiography of Stephen Spender, who was an English poet and a novelist and an essayist, जिनका मोस्टली वर्क होता था सोशल इनजस्टिस या क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हकलबेरी फिन। हकलबेरी फिन इज नरेटेड इन फर्स्ट पर्सन, omniscient narrator, third person or second person. The correct answer is it is narrated in the first person point of view. This is the correct answer, which allows the readers basically to experience the story through the eyes of the character. और यहाँ पर हमें हक की आई से ये पूरी स्टोरी जानने को मिलती है। The story is told entirely from Huck's perspective, his point of view, and Huck refers to himself as I throughout the novel. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेक्स्ट से है, लुक बैक इन एंगर। विच एनिमल्स डू जिमी एंड एलिसन इम्पर्सोनेट इन ऑस्बॉर्न्स लुक बैक इन एंगर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लुक बैक इन एंगर एक रियलिस्ट प्ले है जो कि 1956 का है, एंड इट इज रिटन बाय जॉन ऑस्बॉर्न। वो तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है हमारे। इट फोकसेस ऑन द लाइफ एंड मैरिटल स्ट्रगल्स ऑफ जिमी पॉटर एंड हिज वाइफ एलिसन, एंड द bear is associated with Jimmy and squirrel with Ellison. So option number 2 becomes the right answer. The animals basically symbolize the fact that the social norms and social objectives and social conventions basically always interfere with the love that these two characters, that these two pair of husband and wife have for each other. Next question, on or about December 1910 human nature changed. ये लाइन्स किसने लिखी थी या किसकी स्टेटमेंट है? द करेक्ट आंसर इज वर्जीनिया वुल्फ। ऑन और अबाउट 1910 ह्यूमन नेचर चेंज, वर्जीनिया वुल्फ रोट इन हर एसे मिस्टर बैनेट एंड मिसेस ब्राउन। 1924 में लिखा था उन्होंने ये। तो वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द राइट आंसर। Next question, in which order are the 4 parts of Gulliver Travels arranged? Gulliver Travels also seems to be very important novel for any literature student, specifically competitive exam students. The correct answer is option number 3. सबसे पहले आता है Voyage to Lilliput, उसके बाद Brobdingnag, उसके बाद Laputa, और सबसे लास्ट में Land of Houyhnhnms. Next question, Lollards were followers of which of the following? The correct answer, John Wycliffe. John Wycliffe एक इंग्लिश स्कॉलर थे, फिलोसोफर थे, बाइबल को ट्रांसलेट किया था, रिफॉर्मर थे अपने टाइम के, बहुत ही फेमस। एंड लॉलर्डी ऑल्सो नोन एज लॉलर्डिज्म और लॉलर्ड मोमेंट एक प्री प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मोमेंट थी जो एग्जिस्ट करती थी 14th सेंचुरी से लेकर लगभग 16th सेंचुरी तक, और हम इसको एक रिफॉर्मेशन मोमेंट भी कह सकते हैं। एंड दी लॉलर्ड्स वर दी फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ एंड हिज लॉलर्ड फॉलोअर्स वर दी, आई कैन से, फर्स्ट recognized critics of the established church and its system since the 5th century. Next question, whose poetry is often compared to Keats regarding unbounded sympathy with nature? The correct answer is Toru Dutt. टोरू दत्त को कई बार कंपेयर किया जाता है कीट्स के साथ, इज ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन पोएटेस टू राइट वर्सेस इन फ्रेंच एंड इंग्लिश एज वेल, एंड टोरू दत्त इज ऑल्सो कॉल्ड कीट्स ऑफ द इंडो इंग्लिश लिटरेचर. Next question, the essay Money Box begins with an interaction between Robert Lind and his which of the following? Daughter, sister, niece or nephew? The correct answer is niece. Money Box बहुत ही marvelous piece of essay है, full of humor है, full of wit है, and it is an instrument essay in order to present the author's opinion on preservation and
expenditure management of funds. तो ये स्टोरी ओपन होती है विद अ डायलॉग बिटवीन ऑथर एंड हिज नीस हु इज ट्राइंग टू डिस्कवर हाउ टू open a particular money box before putting in a coin, and a money box is like the delusion of wealth in this essay. So niece is the correct answer. So today we covered 30 more questions and we have reached to the end of part 2. Please keep on watching this channel. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exams.